guys, welcome back you to the channel The Voice Box, and today we are going with the second book, that is Statistics for Economics Class 11th. And today we are going to study this book for the final time. As you guys all aware that our final exams are very nearby to us. So let's start without wasting time. And let me tell to you that this video is gonna little bit long. That's why I have split this into two parts. One part you will see today and the rest part will be coming very soon. Okay, starting from the basics. What is the statistics? So, as per plural sense, it refers to the numerical data. For example, population statistics and employment status, unemployment statistics, everything. I am just giving a brief explanation of all. Okay. Then, singular sense, it refers to statistical methods used to collect and classify and analyze the data. Got it? So, statistics in plural sense, it is numerical data, and in singular sense, it is the statistical method. Coming towards next, stages of statistical study. First is your collection, second is organization, third is presentation, fourth is analysis, and fifth is interpretation. Suppose first thing what you are doing with the data. First, you are collecting it. Secondly, you are organizing it. Thirdly, you are presenting it. Fourth, you are analyzing it. And fifth, the final stage in which you are interpreting the data. Then types of data, primary and secondary. The first hand data, yani the data collected by the investigator for the first time for a specific purpose, which is also known as door-to-door survey. This is known as primary data, and secondary data which data is already collected. मतलब कोई और जो पहले से कलेक्ट करके रखा है, जस्ट हम उसको यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च पर्पस के लिए, लाइक यूजिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई और सेंसस ऑफ इंडिया. देन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. पहला सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे लिस्ट ऑफ आइटम्स आर शोन सिंगली, जैसे मार्क्स 10, 20, 30 following. Then coming towards next, that is discrete series, which is data with exact frequencies but no class intervals. यानी जब तुम्हारा टेबल में बोल रहा है कि 10 marks is scored by 2 students, 20 marks by 5 students, 30 marks by 3 students, like that is your discrete series. Coming to continuous series, जहाँ पे देखो data grouped into class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, following with that. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट पे, दैट इज योर सैम्पलिंग वर्सेस सेंसस मेथड. सेंसस मेथड यहाँ पे क्या होता है, एवरी आइटम इन द यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज स्टडी, जहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है. हाई एक्यूरेसी और हाई कॉस्ट, इसको करने में भी तुम्हारा हाई खर्चा आता है, लेकिन ये क्या रहता है, एकदम एक्यूरेट रहता है. लेकिन वही पे सैम्पलिंग मेथड में ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, अ सैंपल इज स्टडीड. जैसे अब मान लो तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना है, only few drops or few ml of blood will be collected from your body, not the whole blood will be taken out from your body. Are you getting my point? So this is your sampling method. Then key terms to remember: variable, a characteristic that can be measured and changes value. ठीक है, ऐसे याद रखो, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, that is variable. Frequency, the number of time an item repeats in a data set. एक सीरीज में किसी भी पर्टिकुलर आइटम का जो अमाउंट ऑफ रिपीटेशन है वही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है. क्लास इंटरवल को हम लोग आइदर आई लिखते हैं और सी लिखते हैं. जैसे जो 10 to 20 है उसका क्लास इंटरवल क्या है, 10, बिकॉज इफ यू डिफरेंशिएट बिटवीन 20 एंड 10 यू विल गेट द आंसर ऑफ 10. अब मान लो 5 to 15 है तो वहां पे भी क्लास इंटरवल क्या है, 10 का क्लास इंटरवल है. फॉलोइंग विद दैट. ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू के ऊपर आपका पूरा एक टॉपिक बना हुआ है कि मान लो कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या किया गया है, आपके पास मिड वैल्यू दे दिया गया है, लेकिन आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया गया है. और फिर आपको बोला गया है कि आपको उस पर्टिकुलर सीरीज का क्या करना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है. तो आपके पास जो काम है वो डबल हो जा रहा है. क्या काम? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू को यूज करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है. फिर आपको उस पर्टिकुलर सीरीज का
मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, वो कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे L1 प्लस L2 अपॉन 2 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, जैसे ये जो हमारा 10 to 20 का सीरीज है, इसमें जो 10 है वो लोअर लिमिट है, 20 जो अपर लिमिट है, दोनों को ऐड कर दो, 30 अपॉन 2 15, दैट इज योर मिड वैल्यू। अब मान लो कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहां पे आपका लोअर लिमिट नहीं दिया है, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो उस केस में हम लोग L1 यानी लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का मिड वैल्यू कितना आया? 15। 15 माइनस 1/2 इंटू 5। अब इसी माइनस को जब हम प्लस में फ्लिप कर देते हैं तो हमको मिल जाता है अपर लिमिट। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। ये तीन तो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पहला हिस्टोग्राम, जिसको कैसे हम लोग कैसे बनाते हैं? यूजिंग कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, बार्स आर जॉइंट, जहाँ पे दो बार एक ही पर्टिकुलर वैल्यू से बनता है। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो जो बार्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं उसी के मिड पॉइंट्स को जोड़ के, हिस्टोग्राम बार्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। और ओगिव, ओगिव होता है तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, जहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला गया है, यानी एक आपका फ्रीक्वेंसी का अलग से आपका कॉलम रहता है, तो जो दो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे मान लो पहला का है 3, फिर 8, फिर 13, तो पहला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, दूसरे का कितना हो गया? 3 + 8 11। तो फॉलोइंग दैट, वो जो आप ऐड करते चले जाते हो ना हर केस में, वही होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल देख सकते हो कि जहाँ पे आपको बस मिड वैल्यू दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, हमारे पास अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है। और हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में ही मिड वैल्यू होता है, दे पुट इट इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज टू। नहीं बाबा, आपका जो मिड वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आपके पास फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 11, 9 एंड 8। अब इसी 6 के साथ यदि आप 5 को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर 11 + 11 22, 22 + 9 31, 39 + 31 + 8 39। तो ये आपका अलग से मिल गया। अब देखो लोअर लिमिट कैसे निकाले? मिड वैल्यू देखो 5 माइनस 10/2। ये 10/2 कहाँ से आया भैया? ये देखो क्लासेस कितने हैं? 10 माइनस 0, तो 10 आया। अब दोनों के बीच का आई कितना है? आई बोला था मैं वहां पे, m माइनस हाफ इंटू आई, तो वही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे 10/2 10/2 बहुत आया है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज योर ओके। सो लेट्स लुक ऑन टू एन एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास वाकई में नहीं दिया हुआ है। क्या? सीरीज। हमारे पास मिड वैल्यू दिया हुआ है और हमको क्या करना है? निकालना। जैसे देख लो, क्लास मिड वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th आर गिवन एज 25, 32, 39, 46, 53 एंड 60। फाइंड द क्लास साइज विद इंटरवल्स एंड क्लास लिमिट्स। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया गया है और ये टेक्निक आप हमेशा याद रखना है। m माइनस 1/2 इंटू आई इज योर लोअर लिमिट, और वहीं पे जब m प्लस 1/2 इंटू आई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? अपर लिमिट। ठीक है, ये आपका कौन सा सीरीज चल रहा है यहाँ पे? जैसे 21.5 to 28.5। ये 0.5 वाला सिचुएशन कब आता है? जब आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में आपके पास टोटल 9 फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं ये सारे किसके अंतर्गत है? दे आर अंडर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के तहत जो डायरेक्ट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, दैट इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। अब वो हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि इसको कैसे करना है। पहले फॉर्मूलाज देख लो। अज्यूम्ड मीन में हमको सीरीज में से किसी एक पर्टिकुलर डिजिट को या एक पर्टिकुलर नंबर को क्या करना है? अज्यूम करना है। और डी मीन्स या डेविएशन, डेविएशन मीन्स x माइनस ए, और डी डैश यानी x माइनस ए अपॉन सी। हियर सी रिप्रेजेंट्स कॉमन फैक्टर। और जब यहीं पे अज्यूम्ड मीन का जो मेथड है उसी के साथ जब हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाता है स्टेप डेविएशन मेथड।
आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। ओके, पॉकेट अलायंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। नाउ फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? समेशन एक्स अपॉन एन। अब देखो ये फॉर्मूला यूज कैसे हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पॉकेट अलायंस पूरा जो सीरीज है उसको हम लोग क्या मान लिया है? एक्स। यहाँ पे हमने सबको सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, ठीक है। अब जब ये सारे एक्स को हम ऐड किए तो हमको कितना मिला? 340। तो ये जो समेशन है, ये समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द एडिंग ऑफ एवरी यूनिट, यानी सारे यूनिट को ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो होता है समेशन एक्स, ठीक है। तो समेशन एक्स इज योर 340। और यहाँ पे कितने बच्चों का अलाउंस बोला था? 10 बच्चों का। तो योर n इज इक्वल टू 10। तो वहीं पे देख सकते हैं आप कि भैया 340 अपॉन 10 इज इक्वल टू 34। तो एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रुपीज 34। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, इस बार हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, सेम चीज। अब यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो 30 है इसको हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। यू कैन टेक 15, यू कैन टेक 20, यू कैन टेक 50, 65, 55। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज याद रखना, आप किसी भी मेथड से मीन कैलकुलेट करो, भले वो डायरेक्ट हो, स्टेप डेविएशन हो, अज्यूम्ड मीन हो, योर आंसर शुड बी सेम। यदि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी आप डायरेक्ट मेथड से जब कर रहे हो तब कुछ और आ रहा है और अज्यूम्ड मीन से कुछ और या स्टेप डेविएशन से कुछ और, it's clear that you have committed some mistakes anywhere. Okay, as you can see in the table here, we have assumed that 30 is our assumed mean. आपने ऐसा सॉल्व किया है, just it's an example. तो यहीं पे हमने क्या किया है? डी, हमारा जो डेविएशन फ्रॉम assumed mean है वो क्या बोलता है? x माइनस है। तो हमारा जो पॉकेट अलाउंस है वो हमारा x है और a हमने किसको माना है? 30 को। तो सिमिलरली फॉलोइंग द सीक्वेंस फ्रॉम 15 टू 65, तो जो स्टार्टिंग के नंबर्स है वहाँ पे आपके नेगेटिव्स में चल रहे हैं, फिर नेगेटिव्स में आते आते फिर आपका जीरो भी पहुंच रहा है, फिर जीरो पहुंचते पहुंचते फिर नेगेटिव चल रहा है, फिर आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो समेशन डी यानी एडिंग ऑफ ऑल द डेविएशंस इज योर 40। देन व्हिच फार्मूला वी शुड यूज? या अंडर दिस सीरीज, दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज का अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके तहत क्या है? अरिथमेटिक मीन। दिस एक्स बार रिप्रेजेंट्स अरिथमेटिक मीन, दैट इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी अपॉन एन। आपके पास समेशन डी था 40, याद करो, a इज इक्वल्स टू 30 और n कितना है? 10, क्योंकि 10 बच्चों का पॉकेट अलाउंस है। तो एडिंग दैट 30 plus 40 upon 10. We are using our Bodmas formula. As per Bodmas formula, we need to divide it first. So 40 divided by 10 is 4. So 30 plus 4 is equals to 34. As you can see, previous time when we have used the direct method, that time also we have got the same result, and this time. So means we have done the correct method. Okay, now going towards next step deviation method. यहाँ पे आपको थोड़े जीरोस ज्यादा दिख रहे हैं। यू गाइस आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू फियरिंग ऑफ जीरोस? ऐसे कितने जीरोस लगेंगे? हाँ, एग्जाम पेपर में 8 के बाद जीरो लगेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, एक ही जीरो। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द मंथली एक्सपेंस ऑफ 10 हाउस होल्ड्स। ये 10वां घर तो 1 लाख रुपए का है, ज्यादा महंगा। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की ओर। तो देख सकते हैं आप n कितना है? 10 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज करना है, वो है कि आपको d डैश कैलकुलेट करना है। तो d हमने देखा था, d कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट x माइनस a कर रहे थे। यहाँ पे जस्ट एक स्लाइड चेंज करना है, जो x माइनस a है उसको c से डिवाइड करना है। ये c क्या है? कॉमन फैक्टर है। जैसे आप देख सकते हो 50,000, 60,000, 40,000, 70,000, 80,000, ये सब में कॉमन फैक्टर क्या है? 10,000। ये सब में क्या है? 10,000। Okay, so here every particular monthly expenditure of every household has the common factor of 10,000. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो d dash is equals to x minus a upon 10,000. ये 10,000 is what? your common factor. और हमने यहाँ पे assumed mean किसको लिया है? 50,000. फॉर्मूला क्या है? a plus summation d dash upon n into c.
ठीक है, तो 50,000 प्लस 5/10 इंटू 10,000, फिर से बोर्ड मास फॉर्मूला, डिवीजन फर्स्ट, सो 5/10 दैट इज विल बिकम हाफ। तो अब देखो ये 2 से हमने 10,000 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 5,000, तो 50,000 प्लस 5,000 इज योर 55,000। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के तहत डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ, हियर कम्स योर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे वेजेस लिए हैं, कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है, वीकली वेज ऑफ 19 वर्कर्स, ठीक है, तो वेज कितना है 10, 20, 30, 40, 50, नंबर ऑफ वर्कर्स 4, 6, 3, 2, 5। नाउ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे आपका वेजेस का कॉलम है, नेक्स्ट इज योर कॉलम ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी भी है, तो सब फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद कितना आया 20 आया। अब एफ एक्स निकालना है, यहाँ पे एफ इंटू एक्स याद करो, फॉर्मूला क्या है समेशन एफ एक्स, तो एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, एफ इंटू एक्स कर देते हैं, तो वही 40 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 10 40, 20 इंटू 6 120, 30 into 3 that is your 90, 40 into 2 that is equals to your 80, 50 into 5 that is equals to 250. So adding up all is your 580, 580 upon 2 is equals to your 29. ठीक है, that is your mean, this is your mean, ठीक है। अब आता है assumed mean में, we are using the same, बस फॉर्मूला क्या फ्लिप हो गया, बस लास्ट टाइम हमारे पास था समेशन एफ एक्स, यहाँ पे आ गया समेशन एफ डी, डी का भी सेम फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, ये देखो वेजेस का कॉलम, नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसीज, फिर डेविएशन, अज्यूम्ड मीन यहाँ पे इन्होंने 30 लिया है, ठीक है, तो समेशन एफ इज योर 20 सेम एज प्रीवियस वन। उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या फॉर्मूला है समेशन एफ डी, एफ हमारे पास है, टी निकालना है। अब देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि भैया पहले समेशन एफ निकालते हैं अलग से, फिर समेशन ऑफ डी निकालते हैं अलग से, फिर दोनों को ऐड कर देते, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है, वो कंप्लीटली गलत है। आपको क्या करना है, समेशन एफ आपने अलग से निकाला, ठीक है, आपको समेशन डी इंडिविजुअली निकालना है और इंडिविजुअली आपको मल्टीप्लाई करता चलना है, फिर आपको क्या करना है ऐड करना है। जैसे कि देख सकते हो 4 इंटू -20, ये देखो यहाँ पे आपका डी कितना था -20 था, तो 4 इंटू -20 -80 फॉलोइंग द सेम, सो समेशन एफ डी इज इक्वल्स टू -20, तो वही आपका ए कितना है 30 अज्यूम्ड मीन, एफ डी कितना आया है -20 अपॉन 20, ये 20 क्या है भैया फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर से हमने कैलकुलेट किया, आंसर कितना है 29, इट मीन्स व्हाट, वी हैव कमिटेड नो मिस्टेक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे स्टेप डेविएशन में क्या आ जाता है, जो डेविएशन है उसके सिर्फ एक डैश आ जाता है और कॉमन फैक्टर आ जाता है। कॉमन फैक्टर मतलब सॉरी कॉमन फैक्टर के आने से क्या होता है, जो आपका पहले डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था कि भैया d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, वो अब क्या हो जाता है x माइनस ए अपॉन सी, यानी यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर भी क्या होता है यूज हो जाता है, ठीक है। आते हैं इसके सवाल पे, देखो यहाँ पे हमने वेज सेम क्वेश्चन है, वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसीज, डेविएशन में अज्यूम्ड मीन से पहले कैलकुलेट किया। अब देखो स्टेप डेविएशन में d डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, ठीक है, तो यहाँ पे c क्या लिया है हमने 10, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50 दोनों में सब में क्या है कॉमन फैक्टर 10 है, तो आपका समेशन एफ डी डैश कितना है -2। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। सो गिवन क्या गिवन है, अज्यूम्ड मीन इज 30, कॉमन फैक्टर 10 है, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इज इक्वल्स टू योर -2 अपॉन 20 दैट इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है, -0.1, तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है, तो 30 माइनस 0.1 इंटू 10, ठीक है, सो 30 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू अगेन योर 30। तो हमने तीनों फॉर्मूले से दिखाया कि वी हैव कमिटेड नो मिस्टेक। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, इसमें स्लाइड चेंज है, अभी तक हमने जो समेशन एफ एक्स पढ़ा था, एक्स की जगह क्या क्या आ जाएगा एम, और ये एम आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या मिड वैल्यू।
I know, guys, you all have studied this formula. This video is just for your revision purpose. Okay, then let's take this question. The following table shows marks in English secured by class 10 students in your school in their examination. Now calculate the mean marks using direct method. देख सकते हो आप, ये आपका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो मार्क्स इज योर, ये आपका भी कंटिन्यूस सीरीज में है 0 to 10। अब मान लो ये ऐसा होता 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 19 to 29, तो आपको क्या करना, वो कौन सा सीरीज था, या इंक्लूसिव सीरीज। आपको क्या करना पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड से 0.5 प्लस और राइट हैंड साइड से 0.5 माइनस करके फिर आपको इसको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता, फिर ही जाके आप इसको बैठा पाते। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, L1 प्लस L2/2, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, ये हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो कितना आ गया, समेशन F इज इक्वल टू 140, फिर समेशन FM, मिड वैल्यू हमारे पास है, F हमारे पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट किया, 3640 अपॉन 140 इज इक्वल टू 26। तो मीन मार्क्स क्या आ गया आपका, 26। अब ये देखो, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, सेम फॉर्मूला, बस स्लाइड चेंजेस। वहां पे d इज इक्वल्स टू x माइनस ए था और यहाँ पे d इज इक्वल्स टू m माइनस ए हो जाएगा, यानी आपको मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे जो d डैश है देख सकते हो, m माइनस ए अपॉन सी। इस चैप्टर से दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेटेड मीन इज इक्वल्स टू x डैश, w इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ w इंटू एक्स अपॉन समेशन w। यहाँ पे w रिप्रेजेंट्स वेटेड मीन, ठीक है, और कंबाइंड मीन में यहाँ पे आपका जितना भी सीरीज दिया रहा है, यहाँ पे आपका N3 N4 N5 ऐसे बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो वैसे ही x बार 1 2 3 4 जहां तक दिया रहे ऐसे लिख सकते हो, समीशन सॉरी x डैश 1 2 3 डॉट 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 जहां तक है वहां तक इज इक्वल्स टू x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 जितना तक रहे। सो for today I am stopping over here. Till this video I have finished all the formulas from the central tendencies of mean. From the next video we will be starting from central tendency to median and towards the last till index number. Till then, stay home, stay safe, and all the best for your final examination, and stay tuned for part 2 of this video which will be uploaded very soon. Thanks for watching the video.